अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today we will learn tenses and preposition in our summer pack. I hope that you have your pencil, notebook, stationery. If you do not have, collect it quickly. So, as you know that before starting our any class, we recite this dua. So, you are going to repeat this dua with me. As-salatu was-salam alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। So dear students, as you know that before starting our any lecture, any class, we discuss our SLOs. So SLOs of the day is in front of you. SLO means student learning outcomes. Means those students are attending this class, they will get lots of things, they will understand lots of things, and they'll get some skills. So it's written in front of you. Students will be able to know about tenses and preposition. It means that today we are going to cover two important topics, tenses and preposition. Okay, so inshallah students will be able to understand these topics and they will get them easily, inshallah azza. So the first topic which we are going to cover, this is tenses. Okay, so what comes in your mind when you hear the word tenses? Formulas, verbs, lots of things, negative, interrogative. Okay, and these things make some student confused. Okay, so inshallah Zojal will clear our doubt, okay, about tenses. So the word which is written in front of you, tenses, it means time. Okay, it shows time, means when action happens. सही? तो ज़्यादा confuse नहीं होना। टेंसेस का मतलब सिर्फ क्या है? वक्त, टाइम, जमाना, यानी कि कोई काम किस जमाने में हुआ है। We need to tell, when we need to tell these things, we need tenses. Okay, so there are three kinds of tenses: present, past and future. Okay, present, past, future. Okay, tenses means time, और टाइम कितनी तरह के हैं? Present, past, future. सही? We have their sub kinds as well: simple, continuous, perfect and perfect continuous. सही है? तो ये हम अभी बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ तक हमें याद क्या रखना है? Tenses means time, and there are three kinds of time: present, past
and future. Okay, so let's move ahead. So how to understand tenses? टेंसेस को समझे कैसे? ठीक है, टेंसेस को समझने के लिए वी नीड 4 things. Okay, if we do not have these 4 things, we might have problem to make sentences. Okay, so let's see what are these 4 things. Number 1, we have basic grammar. Means you need to have idea about subject, verb, object. मतलब ये सब चीज़ें आपको नो हाउ होनी चाहिए इसकी, वरना आपको परेशानी हो सकती है सेंटेंसेस बनाने में. सही. नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट. सो योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर अबाउट एवरी टेंस. मीन्स प्रेजेंट सिंपल क्यों यूज करते हैं, पास्ट सिंपल क्यों यूज करते हैं. ठीक है, सम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देम लाइक दिस. कर रहा था, ता है, ती है, ते हैं, था, थी, थे. ओके, इट इज़ नॉट रॉन्ग, ये गलत तो नहीं है, लेकिन हमें इसके डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स इनको याद रखना चाहिए. ये ज़्यादा मुनासिब तरीका है. ठीक है, ये गलत नहीं है. अगर कोई स्टूडेंट बिगनर है और वो सीख रहा है इंग्लिश बोलना लिखना, तो उसके लिए ठीक है, वो याद रखता है इस तरह से. सही. लेकिन मशवरा आप सबके लिए यही है कि आप इनके कॉन्सेप्ट्स को और इनकी डेफिनेशंस को सीखें. नंबर 3 हमारे पास है फॉर्मूला. देखिए भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. इफ़ यू डू नॉट नो फार्मूला ऑफ एनी टेंस, तो आपको परेशानी हो सकती है सेंटेंस बनाने में. तो इसको आपको याद करना ही होगा. सही. आई विल शो यू द चार्ट, और हमारे पास लिखे हुए होंगे हमारे पास सारे फॉर्मूलाज, तो वो अब मैं आपको समझा भी दूंगा. सही. लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि आपने इनके फॉर्मूलाज को याद कर लेना है, वरना आपको दिक्कत हो सकती है सेंटेंसेस बनाने में. सही. नंबर 4 जो कि लास्ट है, यूज़ ऑफ वर्ब. यानी कि वर्ब का सही इस्तेमाल, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कहाँ सेकंड आएगी, कहाँ थर्ड आएगी, फिर वो हमें आनी भी चाहिए, याद भी होनी चाहिए. सही. तो दीज आर बेसिक 4 थिंग्स जो आपको सीखनी ही पड़ेंगी टेंसेस को समझने के लिए. आपकी बेसिक ग्रामर, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला एंड यूज ऑफ वर्ब. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी a chart. Okay, so first chart जो हमारे पास है, it is फॉर्मूलाज. तो आपके सामने ये फॉर्मूलाज जो लिखे हुए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर उनके जो सब काइंड्स हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव. जब प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूस है, कंफ्यूज मत होइएगा इसको देख के. परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव. सही. तो ये आपने अपने पास नोट कर लेना है. यानी कि आपने करना क्या होगा, मिसाल के तौर पर आप प्रेजेंट सिंपल यूज करने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ऐसे फॉर्मूला बना लेना है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनके आगे और पीछे रहेंगे. सही. जैसे कि अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस बनाने जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा ही इज गोइंग टू दुबई. सही है, वो दुबई जा रहा है. इज गोइंग टू मदीना. सही. तो क्या करा मैंने, सब्जेक्ट लगाया, फिर क्या करा, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्लस, यानी कि हमारी जो फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी वाली, और प्लस ऑब्जेक्ट मैंने लगा दिया. सही. यानी कि आपने इस चार्ट को अपने पास नोट कर लेना है, और इसके फॉर्मूलाज फिर आप कैसे लिखेंगे, इन सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर इसके बाद ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने ये लिखेंगे, और
एंड में ऑब्जेक्ट होगा। तो ये इसीलिए बताया गया कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ये आपके सामने लिखे हुए और आपने इनको ऐसे ही याद कर लेना है। सही है, ये आपको याद होंगे तो आप करेक्ट सेंटेंस बना पाएंगे। सही, तो ये फॉर्मूलाज देखने के बाद हमारे पास इसकी शक्ल कुछ यूं बन जाती है जैसे कि आपके सामने आपको लिखे ये नज़र आ रहे हैं। तो ये आपने पूरे पूरे याद कर लेने हैं। सही, चलें तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सही, और हमारे पास टेंसेस लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। सही है, तो हम इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है, ताकि हमारे जो डाउट्स हैं माइंड के अंदर वो क्लियर हो जाए, हम इनको कैसे याद करें, कैसे बोलें, तो हम उनको देखते हैं। तो आप सबसे पहले एक काम करें, अपने नोटबुक के अंदर आप ऐसे लिख लें प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, यहाँ से लेके जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक ऐसे लिखें। और उनके आगे मैं आपको ना 1-2 वर्ड्स यानी कि एक 2-2 वर्ड की कुछ ऐसे कीवर्ड्स दे रहा हूँ जिससे कि आपको उसका कॉन्सेप्ट याद करना और याद रखना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम प्रेजेंट सिंपल के आगे आपने लिख लिया होगा प्रेजेंट सिंपल, अब उसके आगे आप क्या लिखेंगे, परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन यानी कि वो काम जो रिपीटेड है, जो आपका हैबिचुअल है, जो आपका डेली रूटीन में यानी कि परमानेंट है, होता ही होता है, बार बार होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल। और उसको हम लोग वैसे भी याद रखते हैं, ता है, ती है, ते है, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे अभी, लेकिन याद दिलाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखिए, परमानेंट एक्शन होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल भी लिखी हुई है आपके सामने, आई हैव अ कार, तो एक परमानेंट एक्शन है भाई। सही, ठीक है। और नेगेटिव केस के हम अभी बाद में बात करेंगे कि डू नॉट कहाँ आता है, डज नॉट की, तो ठीक है, तो ये अभी हम अभी नहीं देख रहे, अभी हमारा फोकस कहाँ पर है, कॉन्सेप्ट्स पर है, जिसको आप गौर से सुनते जाइए और लिखते जाइए अपने साथ साथ। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के आगे आप लिखेंगे मिडिल ऑफ एन एक्शन, यानी कि जब भी हम किसी काम के दरमियान में हो। सही, यानी कि वो काम चल रहा हो, कंटिन्यूस हो, जब इसका नाम प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ठीक है, तो मिडिल ऑफ एक्शन हो, चल रहा हो। दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। सही, मिडिल ऑफ एक्शन है, वो कर रहे हैं और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसके आगे आप लिखेंगे कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है, कंप्लीट एक्शन है, आप इसके आगे लिखें कंप्लीट एक्शन। ठीक है, ऑफ पास्ट। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, पास्ट का कंप्लीट एक्शन है लेकिन हम उसकी इतला देते हैं। ठीक है, कोई खबर होती है, हम सुनाते हैं किसी को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, किसी काम की इतला देने के लिए, उस काम के मुकम्मल हो जाने की इतला देने के लिए। ठीक है, तो काम मुकम्मल हो जाए उसकी इतला देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। उसके आगे हम लिखेंगे कंप्लीट पास्ट एक्शन, बल्कि ये ऐसे ही लिख दें कंप्लीट पास्ट एक्शन। ठीक है, या आपकी याद आने के लिए आप ऐसे लिख लें टू इन्फॉर्म अबाउट कंप्लीट पास्ट एक्शन, ये ताकि आपको कभी भूलेगा नहीं और कॉन्सेप्ट कभी आपका बिगड़ेगा नहीं। सही, चलें तो मूव करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये क्या है। सही, अच्छा अब देखें प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक फ़र्क है। उर्दू दोनों की वही है, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो अगर हम यहाँ इसमें भी बोलें तो हम बोल सकते हैं दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है, यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे एक्शन की जो कि एक लंबे समय से, लंबे वक्त से होता आ रहा है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। सही, अब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल की। तो पास्ट सिंपल अब लिखते हैं पास्ट कंप्लीटेड एक्शन। सही है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट की बात की थी तो वहाँ पे हमने कहा था कि किसी पास्ट कंप्लीटेड एक्शन की इतला देना। यहाँ पे क्या है, सिर्फ पास्ट कंप्लीटेड एक्शन के बारे में हम बता रहे हैं कि खबर नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, मिडिल ऑफ एक्शन वॉज इन पास्ट लिख दें आप इसको। ठीक है, यानी कि पास्ट में मिडिल ऑफ एक्शन था, उसके लिए हम यूज़ करें। ठीक है, इसको हम अभी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ कीवर्ड लिख रहे हैं जिससे हमें ये याद रहेंगे, हम गलती नहीं करेंगे सेंटेंसेस बनाने में। ठीक है,
पास्ट परफेक्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट है अर्लियर पास्ट, ठीक है, यानी कि कोई भी एक्शन हुआ किसी भी दूसरे एक्शन से पहले या बाद में, तो अर्लियर पास्ट हम इसको कहते हैं। सही है। अब अर्लियर पास्ट आप लिख देंगे, हो सकता है बाद में भूल जाएं, तो इसीलिए मैं इसकी वजाहत भी कर रहा हूं साथ साथ कि बिफोर और आफ्टर एनी एक्शन, ये भी लिख दें आप, ताकि आपको हमेशा के लिए, तब आप जब भी कभी अपनी नोटबुक खोलेंगे आपको याद आ जाएगा ये। सही। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सही। तो ये भी क्या है? ये भी पास्ट कंटिन्यूस, और दोनों में क्या फ़र्क है कि जैसे पास्ट कंटिन्यूस था, कर रहा था, ठीक है, ये भी वही है, कर रहा था, लेकिन क्या एक मखसूस वक्त की हम बात करते हैं, स्पेसिफिक टाइम की हम बात करते हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फ्यूचर सिंपल की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? फ्यूचर डिसाइडेड एक्शन लिख दें आप इसको, ठीक है, यानी कि कोई काम डिसाइड हुआ है, अरेंज हुआ है, फ्यूचर अरेंजमेंट है, ठीक है, चाहे फ्यूचर अरेंजमेंट लिखें या डिसाइडेड एक्शन लिखें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। तो इससे आपको ये याद रहेगा, जैसे आई विल कम, ये मैंने डिसाइड करा हुआ है, अरेंजमेंट है फ्यूचर का। सही है। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या है? ये भी ये, ठीक है, मिडिल ऑफ एन एक्शन होगा, लेकिन कब होगा? फ्यूचर में होगा, तो आप इसको ऐसे ही लिखिए, मिडिल ऑफ एक्शन इन फ्यूचर। सही। फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या है? देखिए, परफेक्ट जहाँ पे कहीं पर भी आ रहा है तो परफेक्ट का मतलब याद रखिएगा कंप्लीट है, तो यानी कि मुकम्मल हो जाने वाला काम, कि फ्यूचर में काम मुकम्मल हो जाएगा। ही विल हैव फिनिश्ड, वो ख़त्म कर चुका, कोई भी काम वो अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका होगा। सही। तो मुकम्मल हो जाने का हमें पता है कि ये काम तब तक मुकम्मल हो जाएगा, हम उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सही। तो इसमें क्या है कि ये भी वही रहेगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस में कि कर रहा होगा, यहाँ पर भी ये कि कर रहा होगा, लेकिन क्या एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन की हम बात करेंगे तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा देखिए, अभी हम बात करने वाले नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तो इसमें कोई इतनी दिक्कत और परेशानी की कोई बात नहीं है। आपने करना सिर्फ ये होता है कि इसके हेल्पिंग वर्ब के आगे आप जब नोट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव्स बन जाते हैं, और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को जब आप पहले ले आते हैं सब्जेक्ट से तो वो इंटेरोगेटिव्स बन जाते हैं। सही। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, वो प्रेपोजिशन है। सही। हमने कहा था कि आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे, एक टेंसेस, दूसरा प्रेपोजिशन। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है विच मेक्स पीपल कंफ्यूज। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, इन, ऑन, एट। ठीक है। तो यहाँ पे एट, इन, ऑन लिखा हुआ है आपके सामने, और उनके नीचे उनके कॉन्सेप्ट्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है। तो देखें भाई, टाइम के लिए हमारे पास 3 ही प्रपोजिशंस होती हैं। ठीक है। बाकी कुछ स्पेसिफिक केसेस में आती है, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे, पहले हम इन्हीं को ही देखेंगे और समझेंगे। ठीक है। ताकि एक ही जगह पे माइंड रहेगा तो आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है। अच्छा जी। सही। तो ये आपके पास इनके कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं। सही। अगर हम बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की, तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हमारे पास ये 3 नहीं है, ये इससे ज़्यादा है। सही। तो वो क्या हैं आप देखिए, इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू। देखें ये सारे प्लेसेस के लिए इस्तेमाल करें। अब देखें ये जो हमारे पास ग्रीन कलर की हमारे पास बॉल है, यही इन सब चीज़ों को दिखाती है कि मतलब ये इस वक्त कहाँ, इसकी पोजीशन। ठीक है। प्रीपोजिशन का मतलब ही ये है कि मतलब पोजीशन दिखाना किसी भी चीज़ की कि वो कहाँ है, और इनसे हमें सेंटेंसेस में अंदाज़ा होता है कि ये कहाँ पर आएंगे। अच्छा भाई देखें, इनकी सबसे पहले हम बात करें तो आपको नज़र आ रहा होगा ये एक बॉक्स है, उसके अंदर ग्रीन कलर की बॉल है, तो सेंटेंस क्या होगा? द ग्रीन बॉल इज़ इन द बॉक्स। सही है। मतलब कोई भी चीज़ कम से कम 3 तरफ से कवर हो, घिरी हुई हो, तो उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सही।
अगर हम ऑन की बात करें तो ये इससे डिफरेंट है। वो क्या है कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ की सतह पर हो, उसकी सरफेस को टच कर रही हो, उसके ऊपर हो। जैसे कि अभी आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, आपकी टेबल के ऊपर कीबोर्ड होगा, माउस होगा, पेन होगा, तो हम क्या बोलेंगे, पेन इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, इसी तरीके से द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स। सही। अंडर का मतलब देखिए, अब यहाँ पे आपको तस्वीर से कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई किसी चीज़ के नीचे हो कोई चीज़, तो वो अंडर है। जैसे अभी आप काम कर रहे हैं, आपका पेन गिर जाए, आपकी टेबल के नीचे चला जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, पेन इज अंडर द टेबल। ठीक है। नेक्स्ट टू की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टू का मतलब है बराबर में। सही। तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ग्रीन वाली बॉल जो है वो नेक्स्ट टू के बराबर में है। सही है। बिहाइंड मतलब पीछे। सही है। तो आपको नज़र भी आ रहा होगा द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। सही है। और इसका ऑपोजिट होता है इन फ्रंट ऑफ, यानी कि उसके आगे होना कोई चीज़। सही। तो बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। सही। अच्छा, बिटवीन जो है इसका मतलब है दरमियान में किसी चीज़ के। अब देखिए, दो बॉक्सेस के दरमियान में आपको एक ग्रीन वाली बॉल नज़र आ रही होगी। सही। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द बॉल इज बिटवीन टू बॉक्सेस। सही। तो इसी तरीके से हम और भी इसको देखें, ज़िंदगी में भी हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हम भूल जाते हैं। सही। तो जब हम ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं तो हमारे जहन में ये अच्छे से बैठ जाता है कि हमने कैसे यूज़ करना। तो अब आप रोज़मर्रा के सेंटेंसेस में इनको यूज़ करने की अपनी आदत को बनाएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये आपको याद रहेंगे। सही। तो अभी हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल। सही। तो अभी देखिए, इन, तो कैट इज इन द बॉक्स। सही है। अंदर है, तीन तरफ से देखें कवर है, तो हमने इन यूज़ करा। सतह पर है, सरफेस पे, तो देखें ऑन है। अंडर नीचे है उसके। इन फ्रंट ऑफ सामने है। बिहाइंड की बात करें तो बिहाइंड पीछे, देखें नज़र भी आ रहा है वो कैट जो है पीछे से बॉक्स के झांक रही है। सही है। नेक्स्ट टू बराबर में। सही है। तो आपने देखा होगा बिल्लियाँ जो हैं वो अक्सर ऐसा घर में कर रही होती हैं, तो आप उसको जब देखें या अपने घर में भी अपने छोटे बहन भाइयों को आप ये सिखा सकते हैं। सिखाने से आपको ये चीज़ें याद भी रहेंगी। सही। तो देखें भाई, नेक्स्ट टू है बराबर में, अबव का मतलब ऊपर होता है। सही। अच्छा देखें, ऑन को आप देखें, ऑन का मतलब क्या, सरफेस पे टच होगा तो ऑन है। अबव क्या, सरफेस से टच नहीं है, ऊपर है लेकिन। सही है। और बिलो देखें, अंडर से डिफरेंट है। अंडर क्या मतलब, उसमें भी उसकी सरफेस टच है, नीचे है उसके, लेकिन बिलो का मतलब नीचे होना, यानी कि सरफेस टच नहीं है। ठीक है। बिटवीन वही है जो अभी मैंने आपको ग्रीन वाली बॉल की मिसाल दी थी। देखें अभी कैट कहाँ पे चली गई है, ये दो बॉक्सेस के दरमियान में आ गई है। सही है। ऑन द लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड पे, ऑपोजिट यानी आमने सामने, मध्य मुकाबिल होना। सही है। कभी कभार आप देखते होंगे कि बिल्ली जो है जब वो लड़ने वड़ने पे होते हैं वो लोग, तो वो इस तरीके से आमने सामने आ जाते हैं। सही है। तो हम क्या बोलेंगे, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ऑन द राइट यानी कि जैसे ऑन द लेफ्ट था, इसी तरीके से ये ऑन द राइट है। सही। तो लेट्स सी सम मोर preposition। तो अभी हम ये और preposition देखने वाले हैं, वो क्या है। तो देखें भाई, ये कुछ और prepositions आपके सामने आ गई हैं, लेकिन अब आपके लिए एक छोटा सा काम है, ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इन prepositions को डिक्शनरी में ढूंढना है। सही। आपने अबाउट देखना है, अबव देखना है या क्रॉस देखना, देखेंगे तो आपको उनकी मीनिंग्स मिलेंगे। और उन मीनिंग्स को देखने के बाद आपने कोशिश करनी है कि उनको सेंटेंसेस में यूज़ करें। सही। तो आज आपका ये टास्क भी है, आपका असाइनमेंट भी है। सही। तो इनके मीनिंग्स आपने खुद ढूंढने हैं, खुद बनाने हैं सेंटेंसेस। सही है। हेल्प ले सकते हैं आप। अच्छा, अब तो आसानी की बात ये कि डिक्शनरीज़ के अंदर ख़ुद भी एग्जांपल दी हुई होती है कुछ जगहों पे। सही है। तो कोशिश कीजिएगा पहले ख़ुद बनाने की कोशिश करें। नहीं बना पा रहे हो, कोई परेशानी हो रही हो,
उस सूरत में आप देख लीजिएगा, सही है। वरना खुद से ही कोशिश करें। देखिए कुछ तो इसमें से ऐसे हैं जो अभी हम लोगों ने देख भी लिया, वो तो आपको नज़र भी आ रहे होंगे, सही। तो अभी आपका टास्क आपके सामने है, सही है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। टेंसेस, प्रपोजिशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़े इम्पॉर्टेंट है, सही। तो आपकी क्लास को हम यहाँ पर एंड करेंगे और अपना टास्क जो है वो आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।